नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लगातार चुनाव जीतने वाले परम लोकप्रिय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नरेंद्र मोदी के लिए क्या अमेरिका वाटरलू हो जाएगा? भारत में तो ज्ञानेश, ईडी, सीडी, सीबीआई, आईटी बस चुनाव जीत ही लेना है। लेकिन अमेरिका ने आफत मचा के रख दिया है। लगातार 4 दिन हो गया, 4 दिन से पूरी दुनिया के साथ वो कुछ भी करे, लेकिन मोदी जी के साथ वो क्या करेगा एकदम फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। अच्छा, इस पर भी आप देखिए कि भाजपाइयों का और भक्तों का, उनकी चाल ढाल देखिए जरा। उन्होंने आज मौका नहीं था, आज मतलब किसी की जानकारी में था नहीं, लेकिन उन्होंने 58 सेकंड की एक क्लिप निकाली मोदी जी का डंका बजाने के लिए। मैं आपको पहले बताऊं, 58 सेकंड की क्लिप बहुत सारा है, वो 58 सेकंड अभी हम आपको सुना देंगे कि किस वीडियो से वो क्लिप निकाली। 58 सेकंड की क्लिप निकाली, 58 सेकंड की क्लिप दनादन सोशल मीडिया पर डाल करके लिखना शुरू किए, देखिए ट्रंप के मंत्री लुटनिक बता रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। ये हैं हमारे मोदी 56 इंच वाले। अब भाई कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि यार मंत्री तो बोल रहा है। वो 58 सेकंड की क्लिप है जिसमें लुटनिक ने बोला, वाणिज्य मंत्री ने, कि मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। बस इसी पे अब सोचिए कितने झूठे हैं। और झूठाई में कोई डिग्री अगर हो, मतलब जो सबसे ऊपर की डिग्री हो, सबसे ऊपर की उपाधि हो, बड़ी उपाधि, वो सब इनको मिलनी चाहिए। दरअसल वो 6 मिनट के वीडियो में से काटा गया था, उसके पहले और बाद का हिस्सा उड़ा दिया गया था। उसमें यह था कि 21 दिन तक, 3 हफ्ते तक मोदी हिम्मत ही नहीं कर पाए, उन बहुत अनकंफर्टेबल रहे कि ट्रंप को हम फोन कैसे करें। और उस चक्कर में भारत का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि ट्रंप ने जब 3 हफ्ते बाद मोदी ने कहा कि अच्छा ठीक है साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसे होगा, तो उसने कहा अब ऐसा नहीं होगा, अब और रेट बढ़ेगा। 21 दिन तक इससे पहले आ गए होते, अब और रेट बढ़ेगा। ये हुआ, बहुत भद पिटी है। मैं आपको भाव को ले आइए, मैं 6 मिनट मजबूरी है, आज की 6 मिनट सुनाना पड़ेगा। अंग्रेजी में है, स्वागत है भाव। अंग्रेजी में तो ठहर कर सुनिएगा, हम भी जैसे समझेंगे आप भी समझिएगा, बाकी जो नहीं समझ में आएगा फिर अंग्रेजी का हिंदी में भाव से करवाएंगे। सुनाइए भैया, प्ले कर दीजिए। It's worked in Japan, it's worked in Korea. You did the deal with Europe, you did the deal with the UK. What's sort of out there that's still there? I think India's kind of still out there, although it seems like they are capitulating a little bit. I saw that they just bought a lot of liquefied petroleum gas from the United States in November. What are the big sort of hot button places that you want to... I'll tell you a story about India. So if you remember, so I did the first deal, the UK deal, and we told the UK that they had to get it done by 2 Fridays from now, that was the date, that the train was going to leave the station by 2 Fridays, because I have a lot of other countries doing things, and you know, if someone else is first, they're first. And President Trump does deals like a staircase. First stair gets the best deal. You can't get the best deal after the first guy went. Everyone says, I want the UK deal. I want the UK deal. The answer is no, they were first. They took the chance. They moved quickest. They're first. Second, up a stair. So that sets the floor. Right. And then the next one's got to be higher. And then the next one higher. And then the next one higher. The next one higher. So he does things that way because that way it incents you to come quickly to the table. Right. Right. You could have 3 countries who are the second deal. They all get done at the same time. Right. But you know, if you want to wait and see how it goes, that's at your risk. So he does the UK deal, and they had to get it done by Friday. And Thursday afternoon, Keir Starmer's on the phone, the president. They do their deal Wednesday night, and on Thursday we have a press conference and we announce it. Okay. So everybody asked the president, who do you think is next? And if you look back at the time, he talks about a variety of countries, but he names India a couple of times publicly. It's not like a big secret. And we were talking India, and we told India you had 3 Fridays. You put them on a shot clock.
Well, they have to get it done because what happens is I have lots of other countries, and when those other countries do their deal, The right? staircase goes up. And right, and now the president, during all these deals, he would refer to me as the greatest table setter who ever lived. Okay, because you've never had anybody who was as successful as me as a businessman before, who's just a table setter. That's basically, so, because what I would do is I would negotiate the contracts and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay, he's the closer, he does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. The middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? It was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? So what happened is they just, sometimes there's that seesaw and people are on just the wrong side of the seesaw. When I was young in business and I was a trader. So one of my first jobs was as a trader. And when I would start on the wrong side of the seesaw, I'd buy and it would go down. And then I'd sell, it would go up, and then I'd buy, it would go down and sell. Like when you're on the right side of the seesaw, you can't lose. Yeah. You buy, it goes up, and then you sell it, it goes down, and you buy, it goes up, and sell it goes down, and you feel like you're the king. Yeah. But when you're on the wrong side of the seesaw, what I used to do is I used to put the phone down. I used to go in the bathroom, fill a bucket with water, take a rag, and I would wash the plants in the office because it was much cheaper than me picking up the phone. So, and then people would call and say, can I speak to Howard? And they go, no, he's in a meeting. And meanwhile, they look up and there I am washing the plant. Because whatever I did, I would get back in there and I'd touch it. It would go the wrong way. So what happened is India just was, on the wrong side of the seesaw. And it was just, they couldn't get it done when they needed to. And then they couldn't get it done. And then they couldn't get it done. And then they couldn't get it done. And so what happened is all these other countries kept doing deals. And they're just further in the back of the line. And now when they say, but what I want is I want the deal in between the UK and Vietnam, right, because that's what I negotiated. Right. And they remember. And I remember. And they say, but you agreed. And I said, then. Not now, then. And so that's the problem. India will work it out. But it's just, there's a lot of countries and they each have their own deep internal politics. Mm-hmm. And to get something approved by their parliament or their diet or their, these are deeply complex things. And we're dealing with the world, but we've gotten them done. We got Europe done. Right? We did Japan, then I did Europe, then we did Korea, and we've done country after country after country. And these are durable, meaning these are deals that take care of the country's autos, pharmaceuticals, semiconductors, things that really matter. पूरा हमने सुना दिया, आप सुने ये कैसे खिल्ली उड़ाई जाती है। इन्होंने बड़ा ये उसमें बड़ा क्लियर कट है। एक कैपिटल वेंचरिस्ट है, इंडियन ओरिजिन का दिख रहा था, वो उसने ये उसका पॉडकास्ट है, ये उसने पॉडकास्ट के लिए वहाँ के वाणिज्य मंत्री को बुलाया और वाणिज्य मंत्री को जब पूछा उन्होंने कि बहुत सारे डील हो रहे हैं लेकिन इंडिया के साथ क्यों नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि देखिए हम ट्रम्प साहब डील कैसे करते हैं, ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। सीढ़ी के पहले स्टेप में बिल्कुल नॉर्मल रेट रहते हैं, आप पहले आओ, पहले डील करो, आपको नॉर्मल मिल जाएगा। अगली पायदान चढ़ेंगे, थोड़ा और ज्यादा रेट हायर होते हैं।
उसके अगले पायदान पे चढ़ेंगे और राजा रेट होते हैं। जितने ऊपर चढ़ते जाओगे उतने वो डील आपके लिए हार्डर हो जाते हैं, तकलीफ वाले हो जाते हैं। बोले हमने उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो यूके के साथ हमने डील किया, उनको फ्राइडे का हमने डेडलाइन दिया था। थर्सडे को उनके प्राइम मिनिस्टर का फोन है, ये डील के लिए तैयार है, चलो डील अब फाइनल हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमने बोला बोले करो, तुरंत करो। यूके के बाद क्या, सबकी नजर थी इंडिया की तरफ, क्योंकि कई बार इंडिया का नाम ले चुके थे ट्रम्प साहब। बोले इंडिया 3 फ्राइडे छोड़ दिए इंडिया ने, हम खाली थोड़ी बैठते। इसके बीच में हमने वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस सबके साथ डील करना शुरू कर दिया। बोले करना क्या था, मोदी जी को एक फोन करना था ट्रम्प साहब को कि हाँ हम डील के लिए तैयार है। तब बोले ये नाटक कर रहे थे, 3 फ्राइडे नहीं किए, उसके बाद मेरे पास आया कि हम डील के लिए तैयार है। मैंने बोला बोले कौन सा डील, प्लेटफॉर्म पे कौन से ट्रेन के लिए आए हो, 3 सप्ताह पहले ट्रेन निकल चुकी है। जिस डील पे हम एग्री करते हो, जिस डील के लिए तुम आए हो, अब वो डील नहीं रहा, क्योंकि हमने यूके के साथ एक डील किया, उससे हार्डर हमने डील फिलीपींस और इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ किया। अब आपके साथ डील करेंगे तो उससे भी हार्डर होगा। नहीं तो उन देशों को लगेगा कि यार हमने जल्दी में डील करके हम मूर्ख बन गए, हम थोड़ा रुकते इंडिया जैसा तो हमको अच्छा डील मिलता। ट्रम्प मैसेज देना चाहता है, जो जितना देर होगा उतना भुगतेगा। दूसरी बात, जो बार बार आप कह रहे थे कि ट्रम्प ने मध्यस्थता नहीं की, ट्रम्प ने मध्यस्थता नहीं की, जबकि ट्रम्प ने मध्यस्थता की, तो ट्रम्प को इस बात का भी बुरा लगा था, वो भी इसको ईगो हर्ट हो गया, तो बोले उन्होंने 50% लगा दिए। अब कोई डील हो नहीं रहा है। हमारे मतलब अमेरिका का वाणिज्य मंत्री कहता है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ऑफ अमेरिका, कि अभी कोई डील नहीं है, अभी नए सिरे से शुरू करना होगा। और हमारे लोग यहाँ मूर्ख बना रहे हैं पूरे देश को कि बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत जल्दी से कर रहे हैं और विन विन पोजीशन पे होंगे। और प्रधानमंत्री यहाँ सारा पीट पीट के कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत नुकसान उठा लूंगा, किसानों का बुरा नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच अब अमेरिका को खुश करने के लिए, क्योंकि बाबा नाराज है, उसने सही कहा कि मोदी जी जानता है मैं नाराज हूं। एक दिन ये उससे कहलवाएंगे मोदी जी से कि हाँ इनका फोन आया था और मैंने सीज फायर किया, और ट्रम्प कहलवाएगा एक दिन, पब्लिकली कहलवाएगा किसी मीटिंग में, यू आर टेलिंग दैट आई डिडंट कॉल यू, प्लीज टेल देम दैट आई कॉल्ड यू। कॉल मी, ये होगा। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बेइज्जती जो रोज करवा रहे हैं अपनी, ये देश को समझ में नहीं देना चाहते। और ये अंधभक्त है, मोदी साहब ने फोन नहीं किया। अरे मूर्खो, फोन नहीं किया तो अब डील के लायक कहीं रहे नहीं, और अभी 500% का जुलाब आ रहा है ऊपर से, वो 500 भी ठोक देगा, वो पागल है। उसमें भी एक बात मैं समझना चाहता हूं भाऊ, एक लाइन उसने कहा कि डिस्कम्फर्ट, फोन करने में डिस्कम्फर्ट था। ये नहीं है कि फोन नहीं किया, अड़ गए थे कि हम फोन ही नहीं करेंगे, कौन होता है ट्रम्प। नहीं अड़ नहीं थे, उन्होंने डिस्कम्फर्ट, उसने ये भी कहा, देखिए कॉमर्स मंत्री ने ये भी कहा कि उनको डर लग रहा था कि कहीं ट्रम्प पे फोन करने के बाद कोई ट्रम्प और कोई शर्तें न लाद दे। दूसरी बात है कि ये जो भास्कर की रिपोर्ट में अभी पढ़ रहा था, उसमें ये भी लिखा है कि उनको दूसरा एक अनकंफर्टेबल ये था कि ये बार बार जो कह रहे थे कि ट्रम्प ने जो कह रहे थे कि मैंने इनका युद्ध रुकवाया, वो भारत मना कर रहा था। ये भी एक उनको डर था कि ये बोले तो क्या करे। मतलब कितना झूठ हमारे यहाँ चलाते हैं मीडिया, ये पामेरियन जो भोभो मीडिया है, सुबह शाम तक एक बिस्कुट लेके खा के क्या क्या बोलना शुरू कर देते। बोले मोदी साहब ने आंखों में आंखें डाल के फोन पे डांटा आधा घंटा, और यह बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और उसने कहा तुम मुझे बात नहीं करते हो तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। यूके से हो गया, फिलीपींस से हो गया, इससे हो गया, उससे हो गया, धनाधन डील चल रहे हैं। फिर आप धीरे से आ गए हमारा डील। बोले कौन, फिर लाइन में लग, चल जब नंबर आया तब देखेंगे। अच्छा एक बात और भाऊ, एक बात और, एक हम लोग कहावत जो है चुटकुला, अच्छा, उसने एक बात और कही, महत्वपूर्ण। उसने कहा मैं कॉमर्स सेक्रेटरी हूं, लेकिन मैं डील हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, मैं पूरा टेबल पे डील तैयार करके रखता हूं।
उनका मेरे पे, क्योंकि मैं लगातार सक्सेसफुल डील दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा, उन्होंने जो मुझे बिजनेस बनाया। उन्हें कहा ये जो वो रहता ना सीसॉ, बच्चे नहीं खेलते क्या, एक बच्चा ऊपर जाता है एक बच्चा नीचे जाता है, बोले वो वैसा कर रहा था भारत। बोले तुम सीसॉ के रॉन्ग साइड पे गए तो खत्म। बोला मैं जब यंग था और मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था तब का मैं किस्सा बताता हूं। बोले मैं बायर, वो सेलर कभी ऊपर जाए, मैं कभी नीचे जाऊं, कभी मैं ऊपर जाऊं, कभी वो नीचे जाए, तो मैं क्या करता था, मैं फोन बंद कर देता था, फोन काटता था और बाथरूम में जाके बर्तन धोना शुरू करता था। वो बार बार फोन करता था, जो सेलर है, अरे क्या हो गया इसको, फोन नहीं उठा रहा, क्या नहीं। और बोले जब वो कोई मेरे ऑफिस में फोन करता तो बोलता था, बोले साहब दूसरे मीटिंग में बिजी है। दूसरे मीटिंग में मतलब बर्तन मांजने में, क्योंकि उसका फोन उठाने से अच्छा कि मैं बर्तन मांजू, मेरे को ज्यादा प्रॉफिटेबल है, एक काम तो खत्म हो जाएगा घर का। और बोले उसको समझ में आ गया कि कोई दूसरा नहीं मिले, तो वो बोले लाइन पे आता था। ये मेरा स्टाइल है, ये फंस गए बोले इसमें। अब भारत के लिए तो कोई डील का है ही नहीं हमारे पास, नए सिरे से चालू करना पड़ेगा, और वो अगले पायदान पे होगा। मतलब वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, जिन जिन के साथ अभी तक डील हो गए, फ्रांस, इन जिनके साथ डील हो गए उनकी से ज्यादा हाई रेट में करना पड़ेगा और उनके टर्म्स पे करना पड़ेगा। अब यदि उन्होंने बोला कि हमारे, बोले हाँ मैं जानता हूं कि भाई मोदी के अपने प्रॉब्लम हो सकते हैं, हर देश के अपने प्रॉब्लम है, उनका अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल पार्लियामेंट है, लेकिन फिर आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हो, आपको उसने फुर्ती से करना पड़ेगा। साहब डर के मारे फोन नहीं कर रहे थे, साहब को हिचक थी फोन करने में, साहब के मन में चोर था फोन करने में, इसलिए साहब ने फोन नहीं किया। और पूरा देश आज यदि भदोई में, यदि आज हम कारपेट वीवर्स, जो हमारे कारपेट बनाने वाले जो लोग हैं, आज हमारे भाई आज बेरोजगार बैठे हैं, आज सूरत खाली है, ये सारी चीजें, कहीं चंद्रबाबू नायडू रो रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू को भी अभी वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का इंटरव्यू ठीक से देखना चाहिए। उनको लगता है रशियन ऑयल रशियन ऑयल रशियन ऑयल, रशियन ऑयल तो बहाना था, मेन है आपने इसको ईगो को हट किया। और आपको ईगो को हट करना, यदि आप नहीं, फिर आपकी ताकत रखो ऐसी। मैं वही करने जा रहा हूँ। एक सवाल ईगो को हट, ईगो का एक चुटकुला था ना, वो सजा दी तो पहले क्या 100 प्याज खाओगे, 100 गाली या 100 जूता, 100 गाली 100 प्याज 100 जूता। तो कहा कि यार गाली सबसे आसान है, 100 गाली दे दो, खत्म, नहीं सुनेंगे हम। उस 100 गाली में गाली देना शुरू किया, 50 60 70 गाली होते होते उसको मतलब कुछ उसका नहीं छूटा, तो उसके एकदम सहन शक्ति से बाहर हो गया। कहा यार छोड़ो, इससे अच्छा खाने की चीज है प्याज, 100 प्याज खा लेते हैं। 100 प्याज में वो 10-12 प्याज पे बोल गया। उसके बाद कहा बचा आखिरी वो, तो कहा 100 जूता मारो। तो उसने सब 3 सजा का ऑप्शन था, वो तीनों लिया, तीनों सजा ले लिया उसने। या तो फिर 21 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद नहीं जाते कि नहीं तो नहीं, कौन ट्रम्प। मैं आज भी मैं कहता हूँ, ये बड़ा अपराध है। आज वाणिज्य मंत्री यदि कहता है वहां का कि अभी कोई डील नहीं है, तो अपने डेलीगेशन वापस बुलाओ। हाँ, कोई डील नहीं अमेरिका के साथ अब। अच्छा नहीं, मोदी फोन नहीं कर रहे थे, जो भक्त कर रहे, मोदी फोन नहीं किए ट्रंप को। जब फोन नहीं कर रहे थे तो 3 हफ्ते बाद किस लिए गए थे? हाँ, 3 हफ्ते बाद भागवत करवा रहा था ट्रंप, किस लिए 3 हफ्ते बाद कहे सर अब कर लेते हैं, हम रेडी हैं? अरे जब सर रेडी ही होना था आपको, तो सर पहले दिन रेडी होते, थोड़ा उसी मोल भाव करते, सस्ते में लेके आते कुछ। मूर्खों की फौज पाल के रखी है ना। हमारे वाणिज्य मंत्री जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं अपने आप को, उनको 24 घंटे फाइनेंस मिनिस्टर बनने का सपने पड़ते रहते हैं, वित्त मंत्री बनने के। वो क्या कर रहे थे, कौन सा विन विन सिचुएशन में हम करेंगे, कौन सी विन विन सिचुएशन है। अब उनका कॉमर्स मिनिस्टर बोलता है डील ही नहीं है, चलो जयराम जी की डील इज कॉल्ड ऑफ। और अमेरिका में क्या टूरिस्ट, अमेरिका में क्या एसी करने गए हो क्या भाई साहब आप सब, भारत सरकार के पैसे में? नहीं, देश ये जान रहा है पीयूष गोयल के बारे में, देश ये जान रहा है पीयूष गोयल के बारे में कि बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, अमेरिका के साथ डील कर रहा है। आज पता चला वहां कोई बातें नहीं चल रही है, तो टाइम पास कर रहा है, देश को मूर्ख बना रहा है। हाँ बिल्कुल,
ये जो अग्रवाल बैठा है वहां पे, जो बार बार कह रहा है कि कॉमर्स सेक्रेटरी अग्रवाल जी ने ये कहा, वो कहा, राजेश अग्रवाल जी ने क्या कहा भाई? राजेश अग्रवाल अभी इस पे बात करे ना। सरकार वाणिज्य मंत्री के इस जवाब, मतलब इस वक्तव्य पे जवाब दे। कहे कि वाणिज्य मंत्री मूर्ख है, उसको पता ही नहीं हमारी डील कहां तक आगे गई। रिकॉर्ड पे तो बोले यार, वाणिज्य मंत्री भी जूता मार के जा रहा है। पहले तो ट्रंप ही मारते थे, उनके सांसद जूते मार रहे हैं, अब वाणिज्य मंत्री भी बोल रहा है। अब क्या जवाब देंगे? स्टेटमेंट क्या कह देंगे कि हम इनसे नहीं, लूटने से नहीं कर रहे हैं, हम उससे कमला हैरिस से कर मतलब रहे ये हैं डील। एक बच्चे को एक बच्चे को पिता ने कहा कि जा भाई, नागपुर से तू दिल्ली जा। वो ट्रेन छूट गई, उसको पिता फोन करके बोलता है क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, अभी तो भोपाल आ गया है पापा, चाय पी रहा हूं। और बेटा आप कैसे हैं? आधे घंटे बाद, अरे पापा ग्वालियर आ गया है, चाय पी रहा हूं पापा। ट्रेन उसकी छूट गई है नागपुर स्टेशन पे ही, और पिता को मूर्ख बना रहा है। उतने नहीं मूर्ख बना रहे हैं, अभी हम कार्यक्रम में और दिखा देते हैं। जरा भैया खबर दिखाइए, तो दिखाइए खबर। देखिए इस देश की दशा देख लीजिए जरा। राष्ट्राध्यक्ष किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होता है कि उसके जीवन काल, उसके कार्यकाल में वो अपनी मूर्खताओं का नतीजा खुद भुगते। जब देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही हो तो जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा होता है। ट्रेड डील को लेकर देख लीजिए, आज हमने देखा एक अमेरिकी अधिकारी ने जो बोला, 3 हफ्ते विलंब किया हमने जवाब देने में और कहा अब हम तैयार हैं। वहां से जवाब आया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 3 हफ्ते विलंब। रोज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री का, यानी कि हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी चुप, नरेंद्र मोदी चुप, बोलने की हिम्मत नहीं। जवाब कांग्रेस दे रही है। देश को मूर्खतापूर्ण विदेश नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोज पीयूष गोयल दिल्ली एयरपोर्ट से ट्वीट करते थे, साहब मैं पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं ट्रेड डील करने, फाइनल करने। वहां लैंड करके वॉशिंगटन में कहते थे पहुंच गया हूं। अरे हमें आपका टाइम टेबल नहीं चाहिए, हमें आपका ट्रैवल शेड्यूल नहीं चाहिए। हुआ क्या? जयशंकर जी के साथ भी यही हुआ। क्या हासिल किया? देश के लिए क्या हासिल किया? फोटो ऑप्स नहीं चाहिए, जफ्फियां नहीं चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब नहीं चाहिए। देश को क्या मिला? अंत में इसी तरीके से नापा जाता है आपकी मेहनत को, आपकी नीयत को। और यहां मेहनत और नीयत दोनों में बहुत बड़ी खामियां हैं, माफ कीजिएगा मूर्खता है। चलिए क्या मिला देश को, अब वो दिखा देते हैं। पवन खेड़ा जी, आपको हम दिखाते हैं देश को क्या मिला। आपने देखा होगा तो दोबारा देखिए। ये देखिए खबर भाऊ, ये राइटर्स की एक्सक्लूसिव खबर है। इंडिया प्लान्स टू स्क्रैप कर्ब्स ऑन चाइनीज फर्म बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए ये जो चीन को जो गाली दे रहे थे, और ये जो अंध भक्त जिन्होंने मेरे नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे की हत्या कर दी चीनी चीनी बोल के, अब इनको यहाँ पे ला के जरा चौराहे पे जूते मारो, जो चीन को गाली दे रहे हैं। अब सरकार जिन्होंने चीन के फर्म पे ब्लैकलिस्ट कर रखा था कि आप हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे क्रबिंग नहीं कर सकते, वो अब चीन के सामने रेड कारपेट लगा के बैठे। हाँ, अब भारत के इसको सरकारी इसको बोलते हैं भाई साहब थूक के चाटना। शुद्ध हिंदी में गलिच्छ भाषा है, हम यूज नहीं करते, लेकिन ये बिल्कुल गांव में मुहावरा में यूज होता है। आपको कोई भी देश के प्रति कोई भी स्टैंड लेने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि एक लंबी विदेश नीति क्या होती है। मैं इसीलिए कहता हूं सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन वित्त नीति, आपकी रक्षा नीति और परराष्ट्र नीति, विदेश नीति, ये हमेशा लंबी चलती है। ज्यादातर कोई इसमें बदलाव नहीं लाते। लेकिन इस आदमी ने 2014 के बाद सोचा, क्योंकि कई अंधभक्त है जिन्होंने आजादी दे दी देश को 2014 के बाद, कंगना रनावत जैसे। अब उनके जैसी टोली यदि आज साथ होगी तो उनको लगा कि देश आजाद 2014 में हुआ, तो देश को एक विदेश नीति भी चाहिए, देश को एक रक्षा नीति भी चाहिए, देश में अर्थ नीति भी चाहिए। तो अपने हिसाब से पेल दिया, ठोक दी नीतियां, जो समझ में नहीं आई उस पर भी बोल दिया। एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सबके पीएचडी मास्टर है हमारे प्रधानमंत्री। विदेश नीति बदल डाली, गले पड़ गया मामला, आज हम कहीं के नहीं रहे। अर्थनीति में आपने खेल कर दिया, अभी तक देश उभर नहीं पाया है। रक्षा मिनिस्ट्री में अग्निवीर लाया, रोज उसके लिए चिल्लाचोट हो रही है।
हर जगह पे आपने इंटरफेयर किया। मेरा छाप होना चाहिए। अरे आपका छाप होने के लिए आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा ना भाई साहब। बताइए, 84 साल की उम्र में खड़गे साहब ने इनको पकड़ा है। ये सरकारी ठेके, जो दर्शक नहीं क्लियर हुआ उनको मैं क्लियर कर दूं, भारत में सरकारी ठेकों में अब चीन की कंपनियां चीनी भी बिडिंग करेंगी, जी डील उसमें करेंगे। शामिल होंगी। हाँ, लाइए जरा खड़गे साहब का ट्वीट दिखा दीजिए। और अब उन जब चीन 84 कंपनियों के साल की उम्र में- और उस चीन कंपनियों के साथ गौतम सेठ भी होंगे, गौतम अडानी, क्योंकि इनका चीन हाँ, के कंपनियों के साथ टाई भाई। हम्म, शायद उसी लिए हटाया ही जा रहा है। फुल करिए, फुल कर दीजिए। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज जो हो रहा है वो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। दो ताजा उदाहरण, 5 साल से लगा चीनी कंपनियों पर बैन हटाया जा रहा है। 5 साल से बैन लगा था, बैन हटाया जा रहा है। गलवान में भारतीय वीर सैनिकों ने जो आहुति दी, उनके बलिदान का अपमान तो मोदी जी चीन को क्लीन चिट थमाकर कर दिया किया था। अब चीनी कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछाकर वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी लाल आंख में चीनी लाल रंग कितना गहरा है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति रोजाना भारत द्वारा रूसी तेल निर्यात पर टिप्पणी कर रहे हैं, पर मोदी जी चुप हैं, उनकी नजरें अपनी नजरें चुरा रहे हैं। सर वाली बात सरेंडर ज्यादा दिखती है। हमारे लिए विदेश नीति मतलब राष्ट्रहित सर्वोपरि होना जरूरी है, पर मोदी सरकार ने हमारी नॉन अलाइंड और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की विदेश नीति को गहरी चोट पहुंचाई है। मोदी सरकार की विदेश नीति एक वाइल्ड पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर झूलती है, और इसका नुकसान भारत की जनता को हो रहा है। ये वाइल्ड पेंडुलम नहीं है खड़गे साहब, ये बंदर की किस्सा कई बार हम लोग चर्चा में लाते हैं, भाव सुनाते हैं कि क्या कर रहे हो। अरे प्रयास तो कर रहा हूं। कैसा प्रयास कर रहे हो? अरे इस डाल से उस डाल लगातार उछल रहा हूं, अगर एक भी मिनट चैन से बैठा हूं तो बताओ। तो ये भी इस डाल से उस डाल उछल रहे हैं। रूस से अमेरिका उछल जाते हैं, अमेरिका से कूद के चीन के गोद में बैठ जाते हैं। तो इस गोद से उस गोद में उछल कूद मचा रहे हैं, एक भी मिनट चैन से नहीं बैठे हैं, ना भारत को चैन से बैठे दिए भाऊ। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल। ये हाँ? देखिए क्या है, हमारी विदेश नीति इतनी ढुलमुल हो गई है कि हम फिर चाइना के चरणों में जाना पड़ रहा है। अमेरिका के चरणों में जाके 3 बार ढोक दे के दर्शन करने के बाद भी वो जूता मार रहा है, वो आशीर्वाद दे नहीं रहा है। जिस रशिया को हम अपना दोस्त बोलते हैं, पुतिन आने के बाद बड़ा स्वागत करते हैं, गले लगते हैं, उसका तेल खरीदने की हिम्मत हमारी नहीं हो रही है। तेल खरीदना हमने बंद कर दिया। हम इनको ये पता ही नहीं, जो सामने आ जाता है उसको बाप बोलना शुरू कर देते हैं। इनके ताऊ रोज बदलते हैं, रोज ताऊ बदलते हैं इनके। लेकिन इनका अपना क्या है? भारत की विदेश नीति क्या है? भारत की अब विदेश हिंदी नीति चीनी क्या भाई भाई हो गए। अब राहुल गांधी चीनी एम्बेसडर को मिलते हैं तो देशद्रोह हो गया। अब चीनी कंपनियां यहां रोड बनाएगी, वो चल जाएगा आपको। ये स्वदेशी मूवमेंट वाले क्या इंदौर का पानी भागीरथपुरा का पी के मर गए क्या? चीनी मूर्तियों का बहिष्कार करो, चीनी दियो का, चीनी दिवाली का बहिष्कार करो, अपना सामान खरीदो। बोलो चीनी कंपनियों का बहिष्कार करें, लिखो प्रधानमंत्री को। चीनी कंपनियां यहाँ ठेका लेने आ रही हैं, और अभी तक गणेश जी जो है आंखें बता रहे थे, अब गणेश जी की आंखें देश में बनाने के लिए चीन की कंपनियों को बुलाएंगे, और गणेश जी की आंखें बता रहे थे। चलिए इजाजत दीजिए हमें, फिर कई खबरें हैं, आज शुक्रवार बहुत व्यस्त शुक्रवार है, कई खबरें लेकर के हम आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।